اترتا ہے اس شفاعت کرتا ہے ربی کو لیا رکھ لیا تو شکل سنتوریا. میرے عزیزو آج کا جو ٹاپک ہے جو مضمون ہے جو عنوان ہے وہ ہے یسوع کون ہے. کیا ہے عنوان؟ جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ جو اسے جان لیتا ہے اس کی زندگی میں تسلی اطمینان اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے. ہاللویا. آئیے کلام خدا میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 17واں باب 1 سے 3 آیات مقدس کو ہم پڑھتے ہیں. اور کیا خوب بادشاہوں کے بادشاہ نے خداوندوں کے خدا نے قلم بند کیا ہے پکارا ہے لکھا ہے. یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی تاکہ تیرا بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. بیٹا بیٹھ جاؤ بلنا نہیں آتا. چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق اور یسوع مسیح جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہاللویا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خدا ان کا شکر. میرے عزیزو میرا اور آپ کا خدا قادر مدرک بادشاہ کا بادشاہ جس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا جو کل آج بلکہ ابد یکساں ہے جو کہ اختیارات سے لبریز ہے جو میری اور آپ کی فکر کرتا ہے فرماتا ہے وہ خود چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ ہمیشہ کی زندگی کس میں ہے. یسوع کون ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں. اور کلام خدا میں میرا اور آپ کے یسوع فرماتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدا واحد برحق اور یسوع مسیح کو جانے. میرے عزیزو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے مسیحی ہوتے ہوئے اگر خداوند قدوس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں اگر اس کی زندگی کے بارے میں اس کی محبت کے بارے میں اس کے اختیارات کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا ہم نام کے مسیحی ہیں جس کی زندگی میں یسوع المسیح نہیں جس کی زندگی میں یسوع کے مکاشفات نہیں جس کی زندگی میں یسوع المسیح کی صلیبی موت کا پیغام نہیں وہ خوشخبری نہیں وہ ادھورا ہے. میرے عزیزو جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگوں کی زندگی میں غلط فہمیاں ہیں یسوع کے بارے میں اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یسوع کا تو تاریخ میں ذکر ہی نہیں ملتا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا تاریخ کو تخلیق کرنے والا تاریخ کا مالک تاریخ کے درمیان میں کھڑا ہو کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ایک حصہ BC قبل از مسیح before Christ اور ایک حصہ AD اینو ڈومنی. اور اینو ڈومنی کا مطلب ہے خداوند کا سال. یہ جو دور چل رہا ہے یہ اینو ڈومنی چل رہا ہے. میرے عزیزو آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کلام خدا کی روشنی میں کہ لوگ میرے
और आपके मसीह के बारे में क्या क्या कहते हैं और क्या क्या गलत फहमियां। मेरे अजीजों, ये उनकी गलत फहमियां तभी दूर हो सकती है जब मसीही होते हुए हम सिर्फ कहलवाए ना, बल्कि हमारे अंदर भी मसीह हो, हमारे अंदर उसके मुकाशवात हों, ताकि हम इस दुनिया की गलत फहमियों को दूर कर सके। आइए कुछ वक्त के लिए देखते हैं कि दुनिया और पहले भी लोग मसीह यस्सु के बारे में क्या कहते हैं। और मेरे अजीजों, याद रखिएगा, जैसे कि हमने यूहन्ना 17 में पढ़ा कि खुदा कदूस चाहते हैं कि उसके बारे में जाना जाए। खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में भी जब तालीम दे रहे थे, तब भी खुदावंद कदूस यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तुम बाहर घूमते फिरते हो, तुम तरह तरह के लोगों में बैठते हो, बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, आज भी इस दौर में, ये कुछ महीने पहले भी लोग बड़े बड़े नाम कहते थे कि मसीह का तारीख में जिक्र नहीं मिलता। आज भी और पहले भी लोग यही कहते थे कि मसीह एक फर्जी शख्सियत है। और बहुत से लोग यह भी कहते हैं, हम यहूदी तारीख नवीस को देखते हैं, रोमी तारीख नवीस को, बड़े बड़े सरफहरिस्त नामों को देखते हैं, जिन्होंने तारीख की बड़ी बड़ी किताबों को लिखा, जिनमें बहुत से बड़े नाम, जो आज भी मुल्क बनी इसराइल में सबसे बड़ा नाम दिया जाता है, यूसुफस, और मुल्क रोम का बड़ा तारीख नवीस टेसिटस, ये दोनों तारीख नवीस अपनी किताबों में कलम बंद करते हैं। हाँ, मसीह यीशु नामी एक शख्स था। हाँ, हम जानते हैं कि मसीह था। हाँ, हम जानते हैं कि वो बड़े बड़े काम करता था। हाँ, हम जानते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा करता था। हाँ, हम जानते हैं कि वो लंगड़ों को चलाता था। हाँ, हम जानते हैं उसने वो तमाम काम किए जो इंसान नहीं करता था। लेकिन वो अपनी किताबों में कलम बंद क्या कर रहे हैं? ये तमाम काम वो कहते हैं यीशु करता था, लेकिन हम उस पर ईमान नहीं रखते। इस जहान के खुदा ने उनको अंधा बना रखा है। और जब हम कलम खुदा में से पढ़ते हैं, मरकज़ 3:21 में कलम बंद है, उस वक्त लोग मेरे और आपके यीशु को कहते थे वो बेखुद है, बेखुद, मजनू, दीवाना। आज जैसे किसी को कहते हैं ना, किसी को देखने या कहने साई, इस टाइप के अल्फाज, यानी कि मजनू है, दीवाना है, साई टाइप बंदा है, छोड़ो इनू, एदियां गल्लां पे तुकियां ने। उस टाइम लोग कहते थे। आज भी वो जो लोग जो उस पर ईमान नहीं रखते, जो आज भी क्रॉस को, कलाम को चला रहे हैं, उनके लिए वो आज भी बेखुद है। जाहिर बात है, जो उस पर ईमान नहीं रखते, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, रेपुटेशन नहीं है। और कुछ लोग कहते थे कि इसमें बुरी रूहें हैं, ये बुरी रूहों के सरदार की मदद से मुझसे करता है। फिर कलम खुदा में मत्ती 9:3 में कलम बंद है। कुछ लोग मेरे और आपके मसीह को काफिर कहते थे। आप लोग मुबारक हैं मेरे अजीजों, आप लोग अजीम हैं, आप मुबारक हैं, आप उसके फर्जंद हैं। मुबारक है वो लोग जिसे आज काफिर कहा जा रहा है। मेरे और आपके मसीह यीशु को भी
यही अल्फाज से पुकारा जाता था। मेरे यीशु को भी मजनू कहा जाता था, काफिर कहा जाता था, बदरुओं के सरदार की तरह से यानी कि जादूगर कहा जाता था। और कलाम खुदा में यूहन्ना 15:18 में कलम बंद है, अगर तुम दुनिया से अदावत रखते हो तो जानते हो कि तुम उससे पहले मुझसे भी अदावत रखी। कलाम खुदा कह रहा है अगर दुनिया तुमसे अदावत रख रही है तो उसने पहले मुझसे भी अदावत रखी थी। और अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तो अपनों का अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे दावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही है उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो तुम्हारी बात पर अमल भी नहीं करेंगे, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। कलाम खुदा फरमाता है मुबारक है वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान पर उनका अजर बड़ा है, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कलाम खुदा में 2 कुरिन्थियों 4 उसकी 10 में लिखा है हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। याद रखिएगा अब वो वक्त शुरू होने को है जब आप आजमाए जाएंगे। अगर हम अपने आप को मसीह का आशिक कहते हैं तो अब पता लगेगा जब तलवार आपके सर पर होगी और पूछेंगे बता तू मसीह का इनकार करेगा कि नहीं। मुबारक है वो लोग जो आखिर तक बर्दाश्त करेंगे, मुबारक है वो लोग जो जान देने तक वफादार रहेंगे, वो जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। मेरे अजीजों, मत्ती 22:16 में हम देखते हैं उस वक्त बहुत से लोग यीशु के पास आकर कहते थे तू सच्चा है और हमें सच्चाई की राह बता जिससे हम हमेशा की जिंदगी पा सके। कुछ लोग कहते थे तू नेक उस्ताद है, तू बातें बड़ी अच्छी करता है, तू हमेशा की जिंदगी की बातें करता है, लेकिन हम तुझ पर ईमान नहीं। कलाम खुदा में कलम बंद है, शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं, लेकिन बगैर ईमान के ईमान अपनी जात से। अगर हम सब कुछ यीशु को मान रहे हैं और हमारी जिंदगी में यीशु के हुक्मों की ताबेदारी नहीं है, हम खुदा को कह रहे हैं उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, अगर हमारे पास मुनासिब जवाब देना नहीं है, कलाम खुदा में लिखा है हर वक्त मुनासिब जवाब के लिए तैयार हो। कोई दूसरा बहन भाई गैर मसीही आपसे मसीह के बारे में पूछता है, आप उसे मसीह के बारे में बता नहीं सकते, आप उसके लिए भी ठोकर का बाइस हो और अपने लिए भी मसीही ना बने, मसीह कहलवाए ना, मसीह बन के दिखाए, मजहबी ना बने, रूहानी बने, ताकि आपको शोर ना डालना पड़े, आपको बताना ना पड़े मैं मसीही हूँ। आपके करदार से, आपके उठने से, आपके बैठने से पता लगे कि आप मसीही हैं। हमारे साथ जो हो रहा है अभी 2-4 दिन पहले, किसी के लिए लानत ना करें, हम लानत के फर्जंद नहीं हैं। कलाम खुदा में कलम बंद है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, लानत इंतकाम लेना। मेरी बहन ने अभी जब आयत पार्टी थी उस टाइम मेरे वही गुजारी थी और मैं कलाम खोल के वही निकाल रहा था। कलाम खुदा में लिखा है इंतकाम लेना मेरा काम है।
खुदावंत को टाइम दे, खुदावंत को करने दे, खुदावंत पर छोड़ दे, और जो आपको सिताते हैं उनके लिए बरकत चाहे। हम बरकत के फरजंद हैं। मेरे अजीजों, अब हमारे मुताबिक यीशु कौन है? अब हमारे नजरिए के मुताबिक, कलाम खुदा के मुताबिक मसीह यीशु कौन है? कलाम खुदा में कलमबंद है गलातियों 1:19 में, गलातियों 2:9 में, सॉरी, क्योंकि एलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम करके सकूनत, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद यीशु के लिए दस्तर बजाकर तारीफ कीजिए। एलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर, आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं, एक ही नाम है, वह यीशु नाम है, वह यीशु नाम कुदरत वाला नाम है। हालेलुया। जब उसने खिदमत का आगाज किया तो उसने ऐलानिया कहा, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मेरा यीशु खुदा ताला की, खुदावंद की अनमोल मोहब्बत का एक अनमोल सरप्राइज गिफ्ट है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। वो कामिल इंसान भी था, उसको दर्द भी होता था, उसको फीलिंग्स भी आती थी, वो रोता भी था, उसे भूख भी लगती थी, वो सोता भी था एज ए कामिल इंसान। और जब तक वो अपने माँ बाप के साथ रहा, एक ताबेदार बेटे के तौर पर उसने अपने फर्ज अंजाम दिए। आमीन। जब उसने लाजर को देखा कि वो मर गया, वो रोया, ज़ारों कतार में, क्योंकि वो जज्बात रखता, वो जानता था कि मैं कुछ ही पल में उसको जिंदा कर दूंगा, लेकिन वो इंसान होते हुए एहसास था, जज्बात रखता था। मेरे अजीजों, जब कश्ती पर वो अपने शागिर्दों के साथ सवार था तो थकावट की वजह से उसे नींद आ गई और तूफान आ गया। क्या हुआ? शागिर्द शोर डालना शुरू। आज भी यीशु हमारी जिंदगी में है, वो हमें देख रहा होता है, हमारे ईमान को। यीशु हमारे अंदर है, उसे हम पहने हैं, वो हम में जिंदा है। फिर भी तूफानों में, परेशानियों में, तंगियों में, दुश्वारियों में हम गिड़गिड़ाना शुरू हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये जानते भी हैं कि जब भी हम उसका नाम लेते हैं तो हमारे दरमियान होता है, फिर भी हम रोते हैं। यीशु को उस वक्त भी गुस्सा आता था इस बात में। वो अपने शागिर्दों से कहता था, ऐ कम में दिखा दो, मैं कब तक तुम्हारे। मेरे अजीजों, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, और पाक रूह हमें खुदावंद यीशु की गवाही के लिए तैयार करता है। हालेलुया। वो कहता है, राहत और जिंदगी मैं हूँ। जिसे मसीह यीशु मिल जाता है उसको राह भी मिल जाती है। दुनिया में भी वो रोमंद होता है, सरफराजी पाता है, इज्जत पाता है, और उसे हमेशा की जिंदगी भी मिल जाती है। कलाम खुदा में कलमबंद है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं वो कभी भी मौत को ना देखेंगे। हालेलुया।
मेरे अजीजों, उसकी बाबत उसकी बाबत बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी फरमाता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के, जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाते हैं। मेरे अजीजों, आज यस्सु को अपनी जिंदगी में मौका दीजिए, उसे जगह दीजिए। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा खुदा की। की कुदरत है। आमीन। मेरे अजीजों, उसने मेरे और आपकी खातिर एक कम 40 घोड़े, उसने मेरे और आपकी खातिर वो लानती मौत ली, जिन लानतों से वो नावाकिफ था, जिन गुनाहों को वो देख ना सकता था। उसने ऐसी ऐसी बातें मेरे और आपके यस्सु को कही गई जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन ये मेरे और आपके यस्सु की मोहब्बत है, अनमोल मोहब्बत है कि उसने इन तमाम चीजों को बर्दाश्त किया। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। मेरा और आपका यस्सु मुजस्सम कलाम है, मुजस्सम खुदा है। जब कुछ भी ना था तब भी तो वो था, जब कुछ भी ना होगा तब भी वो होगा। एक वक्त था जब उसकी रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, एक वक्त था जब वो अदन में बातें करता था, एक वक्त था वो जब नबियों के वसीले हम कलाम होता था। एक वक्त आया कि खुदा को पसंद आया कि वो हमारे दरमियान आए। कलाम खुदा में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी, और जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मत्ती 28:18 में लिखा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास मुझे दिया गया है। मेरे यस्सु जैसी बातें कोई दिखाए, मेरे यस्सु की क्वालिटीज को एक कलाम में खड़ा कर दीजिए, और उसके साथ कोई एक भी क्वालिटी मैच होती है तो मैं अपने सर को कलम से कटवा दूंगा, तलवार से कटा दूंगा। अगर मेरे यस्सु के साथ किसी की मैचिंग होती है, वो कहता है कौन है जब मुझ में गुनाह साबित गुनाह साबित करे। ना उसके उठने में गुनाह, ना उसके बैठने में गुनाह, ना उसके चलने में गुनाह, ना उसके सोने में गुनाह, उसकी किसी भी चीज में गुनाह का माइनर जरा भी नजर नहीं आता। कोई है जो किसी के गुनाह माफ कर सके? कोई है जो मुर्दों को जिंदा कर सके? कोई है जो मट्टी को गूंद कर और आंख को तख्लीक कर सके? तख्लीक का काम किसका है? खुदा का। हालेलुया। रबी को लोरोशी भी हंताला। कौन है जो हवा और पानी को हुक्म दे और वो अपनी जगह पर आ जाए? कौन है जो मानते बर्दाश्त करते हुए बरकत दे? उसने हमें तलवार से कत्ल करना नहीं सिखाया, बल्कि मोहब्बत नूर का फर्जंद बनाया है। उसने हमें दुनिया में नमकीन बनाया है, दुनिया में बरकत का फर्जंद बनाया है। कोई है जो मेरे यस्सु जैसा बन के दिखाए? मेरा और आपका यस्सु जिंदगी बख्शता है, और तमाम दुनिया ईमान रखती है कि वो आएगा, वो आएगा और मुर्दों और जिंदों का इंसाफ करेगा,
उसका छाछ उसके हाथ में है ताकि गेहूं को देनौर से अलग कर सके। मेरे अजीजों, आज यीशु को अपनी जिंदगी में लीजिए। आज यीशु को यीशु यीशु कहकर फॉर्मेलिटी पूरी ना कीजिए। बाइबल को कच्चे ला कर हाली मजगी ना बनी। आज वक्त है, आजाद सामने शुरू होने को है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। आज डिसीजन बना ले डिसीजन कि यीशु के लिए जान देनी है या हमने इस बदन को अजीज रखना है। बदन तो फानी है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत की शरीयत ने हमें इन दोनों से क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। आजाद कर दिया है। जिसके पास यीशु है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। आमीन। उसने कहा पहले ढूंढो मेरी बादशाही, तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।